हेलो स्टूडेंट्स, सो इन लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट टाइम इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। तो एंड आई गेव यू वन क्वेश्चन आल्सो दैट यू आपने ट्राई किया होगा खुद, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन वाज इफ़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू a into x minus y, prove that dy upon dx is equals to 1 minus y square upon 1 minus x square under the root. Okay, so this was the question. Kf 1 minus x square under the root plus 1 minus y square under the root is equals to a into x minus y, prove that dy upon dx is equals to this. Okay, तो मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट दिया था कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप लेट x इज इक्वल्स टू sin theta and y is equals to sin phi. Okay, let x is equals to sin theta, y is equals to sin phi. So now this will be 1 minus sin square theta का under root plus 1 minus sin square phi का under root and this will be equals to a into x की वैल्यू के अपने पास sin theta minus sin phi. Okay, that will be x a into sin theta minus sin phi. Now this thing will be equals to cos theta plus cos phi is equals to a sin theta minus sin phi over there. Okay, so what is cos c plus cos d? Cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो that will be 2 cos theta plus phi by 2 into cos थीटा माइनस फाइव बाई टू. ओके, तो कॉस सी प्लस डी क्या आता है? कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. एंड सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी क्या बन जाएगा? दैट विल बी साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू. ओके, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो दैट मीन्स दिस विल बी डायरेक्टली कैंसल्ड. So now this thing will be equals to 1 upon a will be equals to 1 upon a will be equals to tan of, and this 2 will be cancelled with this 2, here it will be 2. So 1 upon a will be equals to tan of theta minus phi by 2. Okay, 1 upon a will be equals to tan of theta minus phi upon 2. So this implies theta minus phi upon 2 will be equals to tan inverse 1 upon a. Theta minus phi upon 2 will be equals to tan inverse 1 upon a. Okay, now theta minus phi, theta की वैल्यू क्या अपने पास? if x is equals to sin theta, theta will be equals to sin inverse x and phi will be equals to sin inverse y. तो this implies sin inverse x minus sin inverse y is equals to 2 tan inverse 1 by 2 tan inverse 1 upon a. Now differentiating, now taking dy upon dx, या differentiating both sides. What will be differentiation of sin inverse x? That will be 1 upon 1 minus x square under the root plus minus sin inverse y की differentiation क्या हो जाएगी? 1 upon 1 minus y square under the root, and this will be, now 1 upon a क्या है? constant है, तो tan inverse 1 upon a will be a constant, तो hence its differentiation will be equals to 0. Okay, and from here sin inverse y की differentiation 1 upon 1 minus y square under the root into y dash because by chain rule. Okay, so this implies y dash will be equals to 1 minus y square का under root upon 1 minus x square का under root, which is equals to dy upon dx. Hence proof. Okay, so this is also the method to solve the, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें जिसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको दिखे कि ये साइन का फॉर्मूला या कॉस का फॉर्मूला बन रहा है, तो देन यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज़. ओके, तो तब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली वैल्यूज़ को. अनदर क्वेश्चन, इफ y रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर plus x cube is equals to 4x plus 3, then find
dy upon dx at point 2 comma 1. Then find dy upon dx at point 2 comma 1 if y raised to the power 5 plus xy square plus x cube is equals to 4x plus 3. Find the value of dy upon dx at the point 2 comma 1. तो सबसे पहले आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो 5 y रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या होगा, y रेज टू द पावर 4 इंटू 5 एंड इंटू क्या होगा बाय चेन रूल y डैश प्लस इस पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज़ 2y इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 प्लस 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4x का डेरिवेटिव 1 4 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0. ओके, तो हमें क्या पता करना है y डैश, तो y डैश हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 5y रेज टू द पावर 4 प्लस 2xy plus y square plus 3x square is equals to 4. This implies y dash will be equals to, what will be the value of y dash? This will be 4 minus 3x square minus y square upon 5y raised to the power 4 plus 2xy. तो हमें dy upon dx कहाँ पे पता करना था 2,1 पे, तो put x is equals to 2 here and y is equals to 1 here. This implies y dash will be equals to 4 minus 12 minus 1 upon 5 plus 4, so that will be equals to minus 8 minus 1 minus 9 upon 9, so that will be equals to minus 1. Hence dy upon dx की वैल्यू at point 2 comma 1 is equals to minus 1. अब देखिए ये फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं था, हमने x और y को अलग अलग करके नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसकी डिफरेंशिएशन होगी. लेकिन हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल्स देखी थी वो हमने कैसे किए थे, हमने एक फंक्शन को जो मिक्स्ड फॉर्म में गिवन था उसे सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, हमने x अलग किए y अलग किए, देन वी सॉल्व दैट. सो दोनों तरीके हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के. ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से इन दोनों को परफॉर्म करना है. ओके, then another topic in this methods of differentiation is nth order derivative और डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव. सबसे पहले हम बात करेंगे डबल डेरिवेटिव के बारे में. डबल डेरिवेटिव क्या आता है अपने पास, लेट अस सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स एक्स. तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, उसे आप लिखोगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, आप उसे लिखोगे y डैश, या इट विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx एंड इट विल बी इक्वल्स टू f डैश x. अगर आप सेकंड डेरिवेटिव पता करने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल बी सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का फर्दर डेरिवेटिव दैट विल बी सेकंड डेरिवेटिव एंड इट विल बी रिटन एज y डबल डैश. इट विल बी इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, और इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं d2y अपॉन dx square and this will be equals to f double dash x. Okay, so the second order derivative is represented like y double dash. This will be equals to dy upon dx जो आपने निकाला उसका फर्दर जब आप डेरिवेटिव करोगे तो दैट मीन्स y double dash and this is to be written as d2y upon dx square and this will be equals to f double dash x. Okay, तो उसी तरह से मैं थर्ड डेरिवेटिव भी बना सकता हूँ, that will be equals to y triple dash, that will be d by dx of d by dx of dy by dx. So this will be equals to d3y upon dx cube and this is to be written as f triple dash x. So this will be the third order derivative of a particular function. Okay, तो इसी तरह से आप डबल डेरिवेटिव पता कर सकते हो, आप ट्रिपल डेरिवेटिव पता कर सकते हो, आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी पता कर सकते हो, वो हम अभी एग्जांपल से देखेंगे. लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है, नोट करके आप लिख लीजिए. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई.
ओके मैंने आपको बताया था कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, कि अगर आपको dy अपॉन डी एक्स पता करना है और आपको dx अपॉन डी वाई ईजिली पता चल सकता है, तो आप क्या करो, dx अपॉन डी वाई का रेसिप्रोकल ले लो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा। बट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कभी नहीं होता। ओके तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है तो आपको एक ही मेथड से चलना पड़ेगा। आप दो मेथड से, मतलब आप dx अपॉन डी वाई पता करके उसका रेसिप्रोकल करके नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स ही पता करना पड़ेगा और dy अपॉन डी एक्स को ही आप क्या करोगे, फर्दर डिफरेंशिएट करोगे। ओके तो ये चीज़ रेसिप्रोकल वाला जो कंसेप्ट है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सेकंड, थर्ड और nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके तो लेट अस स्टार्ट question, let us suppose this is a question. Find nth order derivative of sin x. Find nth order derivative of sin x. ओके तो अगर हम बात करें y1 मैं बोल रहा हूँ y डैश को, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, नाउ y इज इक्वल्स टू sin x। ओके तो अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो व्हाट विल बी y डैश, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट विल बी cos x, तो y डबल डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, y ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू दैट विल बी माइनस cos x, y फोर डैश विल बी इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स, बिकॉज cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, y 1 2 3 4 5 फिफ्थ डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू cos x। तो इस तरह से चलता जाएगा। ओके तो अगर हम यहाँ से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करें तो मैं यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी, वी ऑब्जर्व हेयर दैट साइन ऑफ 90 प्लस एक्स कितना होता है अपने पास, cos x। साइन ऑफ 180 प्लस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। साइन ऑफ 270 प्लस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन ऑफ 360 प्लस एक्स कितना होता है, प्लस साइन एक्स। साइन ऑफ 360 प्लस 90 प्लस एक्स कितना होता है अपने पास, कॉस एक्स। ओके तो अगर आप इन दोनों से थोड़ा सा रिलेट करोगे तो क्या हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर आ रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स के बराबर, बिकॉज साइन ऑफ 90 प्लस एक्स भी क्या आ रहा है, कॉस एक्स, तो वाई डैश भी क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। वाई डबल डैश किसके बराबर आ रहा है, साइन ऑफ 180 प्लस एक्स के। वाई ट्रिपल डैश किसके बराबर आ रहा है, साइन ऑफ 270 प्लस एक्स के। वाई डबल फोर डैश कितने किसके बराबर आ रहा है, 360 प्लस एक्स के। एंड वाई फाइव डैश दोबारा किसके बराबर आ रहा है, आपको ये याद होगा कि 360 प्लस 90 का मतलब सिंपल क्या है, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट टू बी कॉस एक्स। ओके तो इस तरह से अगर हम इनका पैटर्न बनाना चाहें, सो इन सेम वे वाई एन यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव या वाई रेज टू द पावर एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, पाई बाय 2 इंटू 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 इंटू 3 प्लस एक्स, पाई बाय 2 इंटू 4 प्लस एक्स, पाई बाय 2 इंटू 5 प्लस एक्स। तो दैट मीन्स वाई एन विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू एन प्लस एक्स। तो साइन एक्स के लिए आपने याद कर लेना है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू एन प्लस एक्स। कैसे देखा हमने 4 या 5 डेरिवेटिव पता करके देखा कि व्हाट इज़ द पैटर्न दैट इज़ बीइंग फॉलोड देयर, क्या पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न हमने देखा कि दैट वाज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स ओवर देयर। ओके तो आगे चलते हैं। इन द सेम वे फाइंड nth order derivative of
cos x। लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो cos x को हम y बोल देते हैं, तो y डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन x, y डबल डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस cos x, y ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू साइन x, y फोर डैश विल बी इक्वल्स टू cos x, y फाइव डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन x। तो यही चीज़ हो रही है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगर मैं ये देखूँ तो ये चीज़ क्या है, ये मेरे पास क्या है, कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स के बराबर है कि नहीं। माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स। दिस इज कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स, दिस इज कॉस ऑफ 270 प्लस एक्स, दिस इज कॉस ऑफ 360 प्लस एक्स, दिस इज cos ऑफ 360 प्लस 90 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 इंटू 2 प्लस एक्स मीन्स दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू 2 प्लस एक्स, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू 3 प्लस एक्स, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू 4 प्लस एक्स, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू 5 प्लस एक्स। ओके, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है जो किस में फॉलो हो रहा था, साइन में फॉलो हो रहा था। तो दिस इम्प्लाइज वाई एन विल बी इक्वल्स टू सिंपली cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू एन प्लस एक्स। मतलब जितना भी जिस ऑर्डर का भी आप डेरिवेटिव पता करने की कोशिश करोगे, सिंपली आपने क्या करना है, एन की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू एन प्लस एक्स बन जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बोर्ड लेवल पे आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बोर्ड लेवल पे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ हम कुछ और एक दो nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। Let's suppose the question is find nth order derivative of x raised to the power n. Okay, find nth order derivative of x raised to the power n. तो इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना ऑर्डर पॉसिबल है। मतलब अगर हम देखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर का आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई डैश विल बी इक्वल्स टू 2x, वाई डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 2, वाई ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू 0 ओवर हियर, है कि नहीं। उसी तरह से अगर मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो y डैश विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, y डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 6x, y ट्रिपल डैश विल बी इक्वल्स टू 6 एंड y डबल फोर डैश विल बी इक्वल्स टू 0 ओवर हियर। ओके, तो क्या हो रहा है, अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहा हूँ और लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास x रेज टू द पावर 4 है, तो y डैश कितना बन जाएगा, 4x क्यूब, y डबल डैश कितना बन जाएगा, 12x स्क्वायर, y ट्रिपल डैश कितना बन जाएगा, 24x, y फोर डैश कितना बन जाएगा, 24 और कितना बन जाएगा, 0। ऐसा ही हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए, जब x रेज टू द पावर 4 था तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या आया, 24। 24 कैसे आया मेरे पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 24 दिस कुड बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से अगर मेरे पास x रेज टू द पावर 3 था तो x रेज टू द पावर 3 का डेरिवेटिव कितना आया, थर्ड डेरिवेटिव कितना आया। अगर हम उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, x रेज टू द पावर n का, तो x रेज टू द पावर 3 का थर्ड डेरिवेटिव कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव जब x रेज टू द पावर 2 था आपके पास, तो ये कितना आया, 2 इंटू 1। तो सेम कंसेप्ट से nth
order derivative of x raised to the power n will be equals to n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल कहाँ तक जाओगे आप 1 तक इंटू सम दैट विल बी अवर nth ऑर्डर डेरिवेटिव बिकॉज x की पावर कम होती कहाँ तक चली जाएगी 0 तक, जैसे यहाँ पे चली गई x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 एंड x रेज टू द पावर 0. सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस थिंग कुड बी रिटन एज, ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज n फैक्टोरियल. तो दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बन जाएगा. ओके, सो दिस इज द हाउ टू फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब सेकंड डेरिवेटिव के या nth ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, लेट y इज इक्वल्स टू sin t, x इज इक्वल्स टू cos t, find d2y upon dx square at t is equals to pi by 4. Find d2y upon dx square at t is equals to pi by 4. Okay, तो हमें पता है कि d2y upon dx square will be equals to d by dx of dy upon dx. तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, dy अपॉन dx पता करना पड़ेगा. तो dy अपॉन dx के लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt. तो दैट विल बी इक्वल्स टू cos t एंड dx अपॉन dt दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन t. यही होगा. ओके, तो बाय सेम कंसेप्ट dy अपॉन dx क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस cot t. ओके, dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, माइनस cot t. नाउ हमें क्या करना है एक्चुअल में, ये चीज़ पता करने के लिए हमें क्या पता करना है, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कॉट टी. माइनस ऑफ कॉट टी का हमने क्या पता करना है, डेरिवेटिव पता करना है विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो वेरिएबल क्या है, t है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है. तो t को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये d बाई डी टी ऑफ माइनस कॉट टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. ओके, डी बाई डी टी ऑफ माइनस कॉट टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. तो दैट विल बी गिविंग अस डी ऑफ माइनस कॉट टी अपॉन डी एक्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल t था, तो वी कांट डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, बट वी कैन डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू t एंड वी कैन डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t. तो इस तरह के केस में आपने क्या करना है, t ऑफ माइनस कॉट टी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट टी क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर टी, और एक नेगेटिव बाहर है तो दैट विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. अब एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉस टी. तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि कॉस टी का डेरिवेटिव दैट विल बी माइनस साइन टी. ओके, तो दिस विल बी माइनस वन अपॉन साइन क्यूब टी. साइन एट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 by root 2, तो that will be equals to minus 2 root 2. तो आंसर will be minus 2 root 2 हुए. ओके, तो आई समझ आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी, ये हमने किया था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से. तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट टी. लेकिन जब आप उसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो यू विल हैव टू कंसिडर इट लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स. तो डी वाई अपॉन डी एक्स किस फॉर्म में आया है, कॉट टी की फॉर्म में, टी की फॉर्म में. तो नाउ वी कांट डिफरेंशिएट डायरेक्टली टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो व्हाट विल बी डूइंग, विल टेकिंग इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी. मतलब ये एक्चुअल में हमने क्या किया, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हमने दोबारा अप्लाई कर दी. ओके, दोबारा हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सेकेंड डेरिवेटिव व्हेन the function is given in the form of parametric form. Okay, suppose another question is there. Root x plus root y is equals to 4. Find
dy upon dx at x is equals to 9 and y is equals to 1. If root x plus root y is equals to 4, find the value of dy upon dx at x is equals to 9 and y is equals to 1. तो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, we'll differentiate, we have to find the value of dx upon dy. हमें क्या चीज़ पता करनी है यहाँ पे, dx upon dy. तो हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, x को विद रिस्पेक्ट टू y. अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल वे से चलो और उसका क्या बना दो रेसिप्रोकल, या आप x को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो विद रिस्पेक्ट टू y ओवर हियर. हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे. ओके तो अगर हम x को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x रेज टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 1/2 रूट x प्लस 1/2 रूट y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई. तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स. तो डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स अपॉन रूट वाई. तो हमें क्या पता करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 9, तो दैट विल बी माइनस ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ y, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो आंसर विल बी -3. ओके यही चीज़ बन जाएगी. अब अगर मैं y को विद रिस्पेक्ट टू x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूँ तो दैट विल बी 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/2 रूट वाई इज इक्वल्स टू 0. बिकॉज अगर y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव बाय चेन रूल क्या बन जाएगा, 1. तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू -1/2 रूट y इंटू 2 रूट x. तो दैट विल बी माइनस रूट x अपॉन रूट y. तो सेम चीज़ बन जाएगी, आंसर विल बी -3. ओके तो बाय दिस कंसेप्ट यू कैन सॉल्व इट आइदर वे. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके तो डिफरेंशिएशन का काफ़ी पार्ट हमने कवर कर लिया है, जो बाकी का पेंडिंग पार्ट है वो विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर्स. तो तब तक आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपके पास जो भी है, चाहे वो एनसीईआरटी है बेसिक शुरू करने के लिए एनसीईआरटी है, चाहे आपके पास कोई और टेक्स्ट बुक है, आप उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो. इनफ क्वेश्चंस आर देयर बोर्ड लेवल के लिए. एनसीईआरटी बुक में इनफ क्वेश्चंस हैं, तो आप सबसे पहले वो सॉल्व कीजिए, देन देयर विल बी एन असाइनमेंट टू सॉल्व दैट. थैंक यू.